భారతదేశ ప్రజల గుండె చప్పుడుగా భారతదేశ సమైక్యతను సమగ్రతను కాపాడడం కోసం 3500 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర 55వ రోజుకు చేరుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర నడిబొడ్డు హైదరాబాద్ గడ్డ మీద ఈ రోజు మన రాహుల్ గాంధీ గారు చేరుకొని ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్న ఈ సమావేశానికి మనందరి ప్రియతమ నాయకుడుగా భారతదేశ ప్రజల గుండె చప్పుడుగా మనందరి ఆశాజ్యోతిగా భావి భారత ప్రధానిగా రాహుల్ గాంధీ గారిని సగర్వంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పక్షాన వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షులు భావి భారత ప్రజల ఆశాజ్యోతి రాహుల్ గాంధీ గారిని వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. గౌరవనీయులు కేసీ వేణుగోపాల్ గారు. మన ప్రియతమ నాయకుడు అందరి ఆశాజ్యోతి గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చిన ఈరోజు ఉదయం నుంచే మన నగరానికి వచ్చిన అదృష్టంగా భావిస్తూ తండోపతండాలుగా చార్మినార్ నుంచి మొదలుకొని మోజంజాయి మార్కెట్, గాంధీ భవన్, వాజ్ హౌస్ నుంచి ఈ కార్యక్రమం ఎంతో కన్నుల పండుగగా ఘనంగా రంగరంగ వైభవంగా ఈ పాదయాత్ర సాగుతూ వస్తుంది. ఈరోజు ఉదయం నుంచే మన నగరానికి చేరుకున్న రాహుల్ గాంధీ గారికి వీధి వీధి వాడవాడలలో ఎంతో మంది ఘన స్వాగతం పలికినారు. అందరూ కూడా పిన్నానక పెద్దానక వృద్ధులు అందరూ కూడా రాహుల్ గాంధీ గారికి స్వాగతం పలికిన నగరంలో అందరూ కూడా కన్నుల పండుగగా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారి భారత్ జోడో యాత్ర చార్మినార్ నుంచి మొదలైంది. ఎక్కడ చూసినా ఉసుకేస్తే రాలనంత పబ్లిక్ కూడా రావడం జరిగింది. వారికి ప్రజలందరూ కూడా ఘన స్వాగతం పలికినారు. రాహుల్ గాంధీ మన ప్రియతమ నాయకుడు ఈరోజు కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా మన నగరానికి చరిత్రాత్మకమైనటువంటి చార్మినార్ వద్ద పతాకావిష్కరణతో ప్రారంభమైనటువంటి మన యాత్ర ఈరోజు ఇందిరాగాంధీ మన ప్రియతమ నాయకుడు స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ గారి వచ్చింది. వారికి ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాము. ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మన నాయకుడికి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాము. మీరందరూ కూడా హర్ష ధనాలతో స్వాగతం పలకాలి. మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు కనివిని ఎరగని రీతిలో నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్న రీతిలో మన యొక్క కార్యక్రమం ఈరోజు పాదయాత్ర భారత్ జోడో యాత్ర మొదలు కావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. కాసేపట్లో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు నూతనంగా ఎన్నికైన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ విచ్చేసి రాహుల్ గాంధీ గారి భారత్ జోడో యాత్రలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినారు. కాసేపట్లో వస్తా ఉన్నారు. దయచేసి కొద్దిసేపు క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. కాసేపట్లో కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది.
మల్లికార్జున్ ఖర్గే जोड़ो 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 ఢిల్లీలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గుండెలెదిరేలా హైదరాబాదు నాడి గడ్డ మీద నుంచి నినదించాల్సిందిగా మా యువ మిత్రులందరినీ కోరుకుంటున్నా. నాతో అందరూ గొంతు కలపాల్సిందిగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. జోడో జోడో जोड़ो 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 ఈరోజు మన తెలంగాణ బిడ్డ ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాజ్యసభ సభ్యులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని వేదికని అలంకరించవలసిందిగా తెలంగాణ ప్రజల తరపున రాహుల్ గాంధీ గారి తరపున వారికి అఖండమైన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా మీరందరూ మల్లికార్జున ఖర్గే గారిని ఆహ్వానించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న మిత్రులారా. జోడో 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 మిత్రులారా, తెలంగాణ యువకుల గలం ఇంతేనా? ఢిల్లీకి వినిపించాలి. ఢిల్లీ గద్దె మీద కూర్చున్న నరేంద్ర మోడీ గజ గజ వనకాలి మన నినాదాలతో. జోడో 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 జోడో. ఈరోజు 55 రోజుల నుంచి సెప్టెంబర్ 7 తారీఖు నాడు కన్యాకుమారిలో మొదలైన మన అభిమాన నాయకుడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి మనమడు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి పుత్రుడు సోనియా గాంధీ గారి బిడ్డ మన అభిమాన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర మొదలుపెట్టి తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 5వ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ గడ్డ మీద 23 తారీఖు రోజు అడుగు పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కృష్ణా నది పరవళ్ళు తొక్కినట్టు కృష్ణా ఏ విధంగా అయితే ప్రవహిస్తుందో నల్లమల్ల అడవిలో, ఆ విధంగా లక్షలాది మంది తెలంగాణ యువకులు రాహుల్ గాంధీతో కదం కదం కలిపి ఈరోజు హైదరాబాదు నాడిపట్టున చార్మినారు దగ్గర దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా జోడో జోడో భారత్ జోడో అని లక్షలాది మంది నినదించి ఈ ప్రపంచానికి భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం ఇక్కడున్న అన్ని కులాలకు, మతాలకు, ప్రాంతాలకు, భాషలకు ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు వీటికి అన్నిటికీ అతీతంగా కోట్లాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చి అట్లాంటి దుర్మార్గులను అణిచివేయడానికి కదం దొక్కుతారని చార్మినార్ దగ్గర తెలంగాణ బిడ్డలు నిరూపించరు. మిత్రులారా, చార్మినార్ నుంచి నెక్లెస్ రోడ్డు, ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వరకు అలుపెరగకుండా లక్షలాది మంది యువతి యువకులు అఖండమైన స్వాగతం పలికి ఈ దేశం, ఈ భారతీయులు రాహుల్ గాంధీ గారికి తోడుగా అండగా నిలబడి నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ అరాచకాలను తుదముట్టించడానికి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకొని వచ్చిండ్రు. అందుకే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మొదటిసారి మన తెలంగాణ బిడ్డ హైదరాబాదు నడిపొట్టులో కాలు పెట్టిండు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు. చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి మనోనిబ్బరం కోల్పోకుండా
కాంగ్రెస్ పార్టీతో 55 సంవత్సరాల అనుబంధంతో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా 2 సార్లు ఎంపీగా రాజ్యసభ సభ్యునిగా అహర్నిశలు సేవలు అందిస్తూ ఈ నక్లెస్ రోడ్లో ఈ ట్యాంక్ బండ్లో ఉన్న గౌతమ బుద్ధుని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ దేశంలో జాతీయ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడైండు. అందుకే ఈరోజు అత్యంత సామాన్యుడు ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకొని ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించి అత్యధిక మెజార్టీతోని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కాబడ్డారు. మేమందరం మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జాతీయ అధ్యక్షుడిగా వారిని గౌరవించే అవకాశం తెలంగాణ బిడ్డలకు ఇచ్చిండ్రు. అందుకే వారికి అఖండమైన స్వాగతం పలుకుతూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి కార్యక్రమం యొక్క ప్రారంభోత్సవ ఉపన్యాసాన్ని మన సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారిని మాట్లాడవలసిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సభాధ్యక్షులు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికై మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాద్ నగరానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రియతమ నాయకులు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి, మనందరి ప్రియతమ నాయకులు ఈ దేశం కోసం ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయంతో భారత్ జోడో అనేటువంటి పాదయాత్రని 3500 కిలోమీటర్ల పైబడి కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు నడుస్తూ మన మధ్యకు వచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ నాయకులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారికి, పెద్దలు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ వేణుగోపాల్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకత్వం అందరికీ, మరియు మిత్రులారా, ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులారా, కార్యకర్తలారా, అభిమానులారా, పాత్రికేయ మిత్రులారా, మీ అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలతో పాటు స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. ఈనాటి ఈ సభ హైదరాబాదులో అత్యంత చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సభ. ఆనాడు మనందరి ప్రీతమ నాయకుడు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు సద్భావన యాత్ర పేరు మీద చార్మినార్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వరకు మహాత్మా గాంధీ స్టాచ్యూ వరకు దేశంలో కమ్యూనల్ హార్మనీ కోసం చేసినటువంటి సద్భావన యాత్ర తప్పనిసరిగా సందర్భంగా మనందరం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే దేశానికి ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా మతం పేరు మీదనో లేకపోతే ఆర్థిక పరమైన అసమానతలు సృష్టించి దేశ సంపదని క్రోనీ క్యాపిటలిస్టులకి ఇద్దరికి పంచి పెడుతూ పేదవాళ్ళని పేదలుగా మారుస్తూ ఉంటే, దేశ విభజన జరుగుతూ ఉంటే, ఈ దేశ విభజన జరగటానికి వీల్లేదు, ఈ దేశ సంపదంతా ప్రజలందరికీ చెందాలి అని చెప్పి భారత్ జోడో యాత్ర చేస్తున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారికి హైదరాబాద్ నగరం తరఫున, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే మిత్రులారా, ఈ సమావేశానికి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన ప్రతి కాంగ్రెస్ నాయకుడికి, కదిలి వచ్చిన ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకి రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు నడవండి, మీ వెనక మీ వెన్నట్టు ఉంటామని అడుగులో అడుగేసుకుంటూ నడుస్తూ వచ్చిన మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, పెద్దలు మాట్లాడాల్సి ఉంది కాబట్టి నేను పెద్దగా సమయం తీసుకోకుండా మీ అందరికీ మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ముగించేటప్పుడు మరొక మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను. టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాల పైన కూడా
మన పోరాటం చేయటం కోసం సిద్ధపడాలని చెప్పి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి భువనగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ నాయకులు, మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ నాయకులు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నియోజకవర్గ నాయకులు, వికారాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ నాయకులు, చేవెళ్ళ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ నాయకులందరూ కూడా లక్షలాదిగా తరలి వచ్చి అఖండమైన స్వాగతం పలికిండ్రు. మీకందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గేజీ రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో పాదయాత్రను ఉద్దేశించి జాతీయ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికయి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రారంభోత్సవ ఉపన్యాసం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ జాతికి, కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు వారిని సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా వారికి సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గేజీ, ప్లీజ్ వెల్కమ్. यहाँ पर पधारे हुए मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सलाम और भारत जोड़ो जो राहुल जी का कार्यक्रम है और इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का मुझे काम सौंपा गया है, तो मैं इस कार्यक्रम का हैदराबाद में बड़े संतोष के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं। भाइयों, आज इस मंच पे बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी, माणिक टैगोर जी, बट्टी विक्रमा और जीवन रेड्डी साहब, उत्तम रेड्डी साहब और सेटकार साहब, संपत कुमार और हनुमंतराव जी, पोन्ना लक्ष्मया जी, बोसराज और बहुत से साथी यहाँ पर है। क्षमा करना, मैं किसी का नाम अगर भूल गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। भाइयों, एक कार्यक्रम, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम राहुल जी ने शुरू किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कम से कम 3,560 किलोमीटर चलने का, लोगों से मिलने का, लोगों के साथ बहस करने का, हर पार्टी के एनजीओस कोई भी हो, कि आज जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस सभी ने मिलके जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
समाज में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ भाषा भाषा में लड़ाई, धर्म धर्म में लड़ाई और हर चीज में वो आज अपना हाथ आगे कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी चीज पर वो अपना छाप बिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर और भी एक बात कर रहे हैं कि जो लोग जिस जगह एक है, एकता से काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी एक होकर, एकजुट होकर यहां रहते हैं और ये हमेशा हैदराबाद मशहूर है, खासकर तेलंगाना। मैं भी इसी एरिया से आता हूं, बाजू में रहता हूं। मैं समझता हूं रेवंत रेड्डी और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई है। तो ये मेरे लिए तो नया नहीं है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का मिलजुल है, सभी लोग जो मिल के रहते हैं, पहले हम देखते हुए आए हैं। अब मैं तो यहाँ से 55 साल से यहाँ पर आते जाते रहता हूँ, यहाँ के लीडरों से मिलता हूँ, यहाँ के लीडर मुझे मिलते थे और बहुत से सीनियर लीडर यहाँ अगर हम यहाँ से गुजरते थे तो हमेशा हमको बुला के अपना समझ के पार्टी की बात करते थे और मिलजुल के एक ऐसा मिलाप था वो कभी नहीं टूट सकता। तो हैदराबाद से, तेलंगाना से हमारा जुड़ाव है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी इच्छा थी, आपकी आशा थी कि तेलंगाना अलग बने, वो अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आज आप जो चाहते थे वो देकर आप सभी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आज इतना बड़ा निर्णय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया। तो इसलिए भाइयों, ये एक जो देन है, इसको कायम रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए आप सभी लोग पूरी ताकत लगाना जरूरी है। कोई भी हो, आज यहां पर केसीआर की हुकूमत है। केसीआर की हुकूमत कहां से आई? अरे तेलंगाना से आई और तेलंगाना के लोग उनको दिए, लेकिन उन्हीं लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपके हाथ में यहां पर डेवलपमेंट का झंडा दिया, उन्हीं को आप आज एक एक करके खत्म कर रहे हैं। किसी का लैंड छीन रहे हो, किसी को जबरदस्ती केस डाल रहे हो, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं यही समझता हूं कि केसीआर में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि हमारे कई बिल जो हम पार्लियामेंट में लाए थे, जरा चुप बैठिए, सुनो, उसके बाद फिर कूदेंगे चुनाव में। भाइयों, आप ये मत समझो कि आज जो केसीआर हर स्टेट जाकर मिल रहे हैं, किसी को गला लगा रहे हैं, किसी को शाल डाल रहे हैं, यहां से लेकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से पंजाब गए, पंजाब से फिर
तमिलनाडु गए, बेंगलुरु, सब जगह जा रहे हैं। क्यों भाई? पहले तो तुम अपना घर संभालो, और जो पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिंदा है, लड़ने के तैयार है, उसको आप कमजोर कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बीजेपी के उसूल के खिलाफ हैं, तो आप क्यों उनके कानून को पार्लियामेंट में सपोर्ट किया? जो 3 काले कानून आए थे, इन्होंने सपोर्ट किया, और ट्रिपल तलाक बिल को इन्होंने सपोर्ट किया। इतने मैं चीजें बताऊंगा। जब कभी भी हम लड़ते थे, मैं लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा में था, तो हम हर बिल को जब अपोज करते तो ये लोग उनसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे, हम लाएंगे। ये हमारे पास उतनी ताकत है। तो आपको मैं एक ही बात कहता हूं, ये जो केंद्र की भी सरकार है, ये बड़ी अजब सरकार है। मोदी का तो रोज देखते हैं, कभी वो टोपी पहनते हैं, क्या कभी रुमाल पहनते हैं, हर वेश में वो आते हैं, जैसा देश वैसा वेश वो करके चले जाते हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप सबको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश में सरकारी नौकरियां 13 लाख नौकरियां खाली है। 13 लाख, वो रेलवे के हो, डिफेंस के हो, सिविल सर्वेंट्स के हो, 13 लाख वैकेंसीज है। और परसों मोदी जी 75,000 नौकरियां की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे जिस जगह 13 लाख नौकरियां खाली है और SC, ST, OBC के लिए कम से कम 6 लाख नौकरियां खाली है, वो नौकरियां आप नहीं भर रहे हैं। आप अपने चाहते हुए लोगों को 75,000 की भर्ती करके मैं इतने नौकरी दिया, कहां से दिए भाई? ये तो सरकारी नौकरी है, वो भी 13 लाख है। 13 लाख में सिर्फ आप दे रहे हैं एक 75,000, बाकी के ये तो एक अलग बात, ये तो रूटीन कोर्स है, हमेशा भरते आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, आप जिस सत्ता ने आने से पहले ये वायदा किए थे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी। वो 16 करोड़ नौकरी कहां है, उसका हिसाब दो। और ये तो सरकारी नौकरियां हैं, आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां है? स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इसके कहां है? देखो, ये झूठ बोलते जा रहे हैं मोदी जी, और झूठ बोलते बोलते लोगों को, युवाओं को फंसा रहे हैं। कितने दिन आप झूठ बोलेंगे? अगर ऐसा ही आप झूठ बोलते रहेंगे, देश एक दिन, इस देश का नौजवान उठ खड़ा होगा, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। चुप बैठो भाई, पुलिस जरा शांति से चुप बैठो। तो ये आज इतने नौजवान लोग क्यों आ रहे हैं कि वो जो उन्होंने वायदा किया था, उस वायदे के मुताबिक वो चल नहीं पाए, इसीलिए नाखुश होकर अब रोड पे आए हैं। लाखों लोग, मैं देखा हूं खुद
मैं कन्याकुमारी में भी इस इनॉग्रल फंक्शन में था। वहां से लेकर हैदराबाद तक और हैदराबाद से लेकर अब मराठवाड़ा तक, मराठवाड़ा से लेकर ओडिशा तक लोग लाखों की संख्या में जुड़ेंगे और आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंट्रल में आएगी। और मैं ये आपसे कहूंगा, यूपीए की सरकार कितने काम किए हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है बहुत से नेता बात करने वाले। और क्योंकि बार बार मोदी हमको पार्लियामेंट में पूछते हैं, बाहर पूछते हैं, जब 2 करोड़ का एक रिनोवेशन करके पुल उन्होंने उद्घाटन किया, वो 5 ही दिन में गिर गया और कम से कम 145 लोग मर चुके। जब यही हादसा बंगाल में हुआ था तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का शाप ही कारण है, इसीलिए वो मर गए। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, आप तो सिर्फ 2 करोड़ रिपेयर के लिए वो जो पैसे देकर आपने जो पुल को बनवाया था, तो उस पुल पर चढ़ के नौजवान बच्चे और खासकर बूढ़े लोग भी आज 145 लोग अपनी जान खो पाएंगे। तो ये मोदी झूठ बोलते हैं और झूठ का अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे, एक दिन देश को तबाह और तंग कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारे काम क्या है ये आपके सामने है। वो हमेशा बोलते थे 70 साल में तुमने क्या किया। मैं पार्लियामेंट में उनको बार बार कहता था, अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया होता, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन सकते थे। आप जो प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में डेमोक्रेसी को टिकाया, उसका जो बुनियाद है नीचे डाल दिए थे। तो आप वो डेमोक्रेसी को टिकाने का काम हम लोगों ने किया और उसका फायदा आपको मिला। संविधान, इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, सभी ने मिलकर यह कहा कि अंबेडकर जी इस संविधान को आप बनाइए। संविधान उन्होंने बनाया और उस संविधान की रक्षा करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इसीलिए उस संविधान के वजह से, उस डेमोक्रेसी के वजह से आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं हर जगह। एक गुजरात में कम से कम 6 दिन से घूम रहे। एक इलेक्शन में, छोटी सी एक स्टेट का इलेक्शन, और भी जाने वाले हैं। हिमाचल जैसे स्टेट का इलेक्शन घोषणा करते हैं, लेकिन गुजरात का टाइम टेबल नहीं निकलता, क्योंकि ऐसे उनको बहुत से ऐसे पुल का उद्घाटन करना है जो मुरब्बी में गिरे है, वैसे पुल का उनको उद्घाटन करना है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। महंगाई तो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, हर चीज, बच्चों के पेंसिल, रबर, ऐसे चीजें भी मोदी ने जो नहीं छोड़ा, सब कुछ जीएसटी लगा दिया। एक तरफ जीएसटी की मार, एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आज 26 करोड़ लोगों का इनकम केवल 10,000 रुपए महीना है। 28 करोड़ लोग जो काम करते हैं, अब उनमें से 26 करोड़ लोगों की आमदनी तो केवल 10,000 रुपए है। तो आप सोचिए, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसीलिए तो
सफाई और प्लानिंग लाए थे, लोगों को अनेक कॉलेज बना के दिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, और हैदराबाद उसका एक सबूत है। जिस जगह हजारों लोग फार्मेसी में और दूसरे इंडस्ट्रीज में, HLA में जो काम करते हैं, ये हैदराबाद बना पब्लिक सेक्टर की वजह से। हैदराबाद को बढ़ावा मिला, इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच जो थी पब्लिक सेक्टर बनाने का, लोगों को नौकरी देने का। ये एक एक बेच के खा रहे हैं, ये तो इतना बेच रहे हैं पूछो मत, कि मोदी और शाह मिलके ये दो लोग और इस देश के दो अमीर लोगों को बेचते जा रहे हैं। एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, पोर्ट नहीं छोड़ रहे, रोड नहीं छोड़ रहे, हवा एक खुला छोड़े उसको एक टैक्स नहीं डाल रहे, नहीं तो बाकी सब बेच के खा रहे हैं। अगर मौका मिला, उनको कोई टेक्निक बताया, अगर आदमी जीना है, उसको ऑक्सीजन और हवा होना है, तो उसको कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर कहा तो वो भी कर जाएंगे, यानी किसी को नहीं छोड़ा। तो इसलिए ऐसे लोगों को पहले गद्दी से हटाना है, इसके लिए एक होना है। ये छोटी मोटी बातें आप भूल जाओ, कौन क्या दिया, किसको क्या मिला। अरे अगर देश बचा, हम बचे, डेमोक्रेसी बची, संविधान बचा, तो ये सब कुछ मिलने वाला है ना। अगर यही खत्म हुआ तो आपको क्या मिलने वाला? फिर गुलाम बन जाएंगे, फिर चंद लोगों के हाथ में आप रहेंगे। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए मैं आपसे यही विनती करूंगा, हम मिलजुल के आगे कदम बढ़ाएंगे। और आखिरी एक बात मैं कहता हूं, वक्त को बदलना सीखो, वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, वक्त को बदलना सीखो, और हर हाल में राहुल जी के साथ चलना सीखो। और मोदी जी वो छोटी उड़ान पे गुरूर करते रहते हैं, लेकिन जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है, लेकिन मोदी छोटे छोटे चीजों पे अपने गुरूर बताते, मैंने ये किया वो किया। तो इसलिए दोस्तों, इसको और मैं आगे न बढ़ाते हुआ इतना ही कहूंगा, हम थोड़ा फंस गए, क्योंकि हम सच बोलने वाले लोग, जो कुछ करते हैं वो सच बोलते गए, गरीबों के लिए करते गए। सोनिया जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाई, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लाया, और मनरेगा जैसा स्कीम लाया। ये किसके लिए? ये गरीबों के लिए। हमने किया, लोगों को उसका फायदा हो रहा है, और ये सच है। लेकिन आज लोग झूठ बहुत बोलते हैं, उसीलिए झूठ बोलकर तो मैं भी दरिया पार कर जाता, झूठ बोलकर तो मैं भी दरिया पार कर जाता। डूबो दिया मुझे सच बोलने की आदत से, सच बोलने की आदत से मुझे डुबा दिया। ये झूठ बोलने वालों की सरकार अब आई है। तो इसलिए दोस्तों, आप सच के साथ रहो, जो काम करते हैं उनके साथ रहो, जो लड़ते हैं उनके साथ रहो, डरो मत। सरकार कुछ भी रहने दो, करने दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, SC ST के साथ, OBC के साथ, पिछड़े हुए दबे हुए लोगों के साथ हमेशा रही है, रहेगी, और युवाओं को भी हमेशा साथ देगी। मैं इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। मैं एक स्लोगन दूंगा, आप उसको
अपनी आवाज में जोर से मिला देना। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। अरे अगर केसीआर भी सो गया है तो उठना चाहिए, ऐसा जरा जोर से। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो। भारत जोड़ो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। నరనరాన దేశభక్తిని నింపుకున్న, దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహాత్మా గాంధీ, శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ, శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ వారసుడుగా దేశం ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు తన ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ దేశ యువకులకు స్ఫూర్తినివ్వడానికి ఈ రోజు హైదరాబాదు నగరం నడిపట్టున కదం దొక్కిన మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నా. खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश धूप, कुछ कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं,
सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यह आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है। पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है तो यहां पे अब देखिए सड़कों पे चले हैं, मगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। खारगे जी ने कहा कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। इधर फोन उठाते हैं, वहां मोदी जी फोन उठाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। और फिर मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं, आज ये करना है, कल वो करना है। मैं अब महीनों से चल रहा हूं तेलंगाना में। कितने 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। किसानों से मिल रहा हूं, मजदूरों से बात हो रही है, युवाओं से बात हो रही है। 7-8 घंटे चलते हैं। 6 बजे शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा 7 बज जाते हैं। पूरा दिन हम तेलंगाना के लोगों की आवाज सुनते हैं। हम कुछ कहते नहीं, भाषण नहीं देते। कांग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और 6-7 घंटे बाद हम 15-20 मिनट
अपनी बात रखते हैं। किसानों से बात करो, सीधा किसान, तेलंगाना का किसान आपको कहता है, हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले, खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यह सच्चाई है। 24 घंटा काम कर ले, उसके खेत से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, एमएसपी नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती, उल्टा 3 काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी। युवाओं से बात करो, पहला सवाल मैं पूछता हूं, पढ़ाई क्या की? कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है, और फिर पूछो अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है? सबके सब कहते हैं नहीं, रोजगार नहीं मिल सकता। तेलंगाना में, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर से बात करो, कहते हैं, उनसे पूछो भैया करते क्या हो? तुमने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, करते क्या हो? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं, मगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाते। जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर भाषण में बोलते थे। आजकल नहीं बोलते, ना आपके चीफ मिनिस्टर, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को यह नहीं बताते कि हमने रोजगार का जो सिस्टम था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भाई और बहनों, देश को रोजगार देता कौन है? देश को रोजगार छोटा व्यापारी, किसान, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और कोविड के समय जो इनकी मदद नहीं की, इन 3 चीजों के कारण जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी बिजनेस खत्म हो गया है। ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 2-3 मित्र हैं, नाम आप जानते हो। क्या? ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनके जो मित्र हैं, मैं तो हैरान हो गया। आज सुबह मैंने रेवंत जी से पूछा, ये अभी तक हैदराबाद का एयरपोर्ट है, ये उनके हवाले कैसे नहीं हुआ?
अब देखना, देख लेना, थोड़ी देर बाद ये उसको उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सड़कें, एयरपोर्ट, टेलीकॉम्स, LIC, ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजी है, ये सब की सब नरेंद्र मोदी अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा रहे हैं। और इधर इनका एक तरफ धरनी पोर्टल है, रात को देखते हैं भैया कहां किसकी जमीन गई, कितनी जमीन मिली मुझे, कहां कहां से केसीआर जी ने जमीन हड़पी, रात को वो देखते हैं। सुबह उठते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से पैसा हड़पने का काम करते हैं। और आप लोग एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी जी कहते थे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, 400 रुपए का हो गया है, याद है आपको? 400 रुपए का हो गया। अच्छा भाइयों बहनों, सिलेंडर कितने का है आजकल? अब प्रधानमंत्री जी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उस टाइम कहते थे पेट्रोल का दाम 65 रुपए हो गया है, आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम? एक शब्द नहीं बोलते। तो आप लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों के बीच में आप पिस जाते हो, दब जाते हो। और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को मिलता है। वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उनको एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, जमीन चाहिए, एक सेकंड में उनको मिल सकती है। मगर अगर एक छोटा व्यापारी अपना बिजनेस चलाना चाहे, अगर एक दुकानदार लोन लेना चाहे, नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता। ये लोग लाखों करोड़ रुपए का लोन ले सकते हैं। किसान लेता है, लोन लेता है, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, एकदम उसको कहते हैं डिफॉल्टर हो, जेल के अंदर कर देते हैं, डंडे मारते हैं, लाठी मारते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। मगर अगर अरबपति लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते, उसको कहते हैं ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक चुने हुए अरबपतियों का, जो भी करना चाहते कर सकते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, जो भी सपना ये देखना चाहते देख लेते हैं, पूरा कर देते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मिडिल क्लास का, छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का, उसमें आपको कोई सपना नहीं दिख सकता। और अगर आपने सपना देखा, पूरा होने का सवाल ही नहीं। यह है हिंदुस्तान। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ। आप देखिए, आज सुबह हम हैदराबाद में आए,
7 घंटे चले, लाखों लोग आए। आपने अपना पूरा प्यार, पूरी शक्ति यात्रा को दे दी। आमतौर से क्या होता है, व्यक्ति सुबह उठता है, थकान नहीं होती, 6-7 घंटे बाद चलने के बाद थकान लगती है। आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा शाम को जो हम कदम लेते हैं उसमें सुबह वाले कदम से कम थकान होती है। अजीब सी बात है, किसी भी यात्री को थकान नहीं हो रही है। 1300-1400 किलोमीटर चलनी है, किसी को थकान नहीं हो रही। सुबह 6 बजे उठते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर चलते हैं। इसका कारण है भाई और बहनों, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप हमारे को अपनी शक्ति दे रहे हो, आप हमारे को अपना प्यार दे रहे हो, अपना भरोसा दे रहे हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हैदराबाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, हैदराबाद को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और याद दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर रहना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो हिंसा के साथ, नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, सवाल नहीं उठता। प्यार और भाईचारे के साथ ये प्रदेश और ये हैदराबाद आगे बढ़ेगा। ये आपका इतिहास है, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका कल्चर है, ये आपका डीएनए है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भाइयों और बहनों, आज हम राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे दरमियान में एआईसीसी के नए सदर आली जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी हम तेलंगाना के जानिब से, हैदराबाद के जानिब से धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जानते हैं कि 7 सितंबर से कन्याकुमारी से श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो, भारत में नफरत को खत्म करो, भारत को फिर से मोहब्बत लाओ, और उस भारत को देखना चाह रहे जो महात्मा गांधी जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ख्वाब थे, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने आज हमारे दरमियान में आए तक 55 दिन हो गए हैं और यहाँ कश्मीर तक जाएंगे। पूरा 4 महीने की यात्रा है, अभी 55 दिन हुए हैं और 1400 किलोमीटर उन्होंने आज तक अपना सफर पूरा किया है। भाइयों और बहनों, यह सफर किसी के लिए नहीं, हम सब के लिए है, यह देश को मजबूत करने के लिए है। आप में के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह
हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश धूप, कुछ कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यह आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है, तो यहां पे अब देखिए, सड़कों पे चले हैं, मगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। खारगे जी ने कहा कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है।
और अगर अब महीनों से चल रहा हूं, तेलंगाना में कितने 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, किसानों से मिल रहा हूं, मजदूरों से बात हो रही है, युवाओं से बात हो रही है। 7-8 घंटे चलते हैं, 6 बजे शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा 7 बज जाते हैं। पूरा दिन हम तेलंगाना के लोगों की आवाज सुनते हैं। हम कुछ कहते नहीं, भाषण नहीं देते। कांग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं और 6-7 घंटे बाद हम 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं। किसानों से बात करो, सीधा किसान, तेलंगाना का किसान आपको कहता है, हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले, खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यह सच्चाई है। 24 घंटा काम कर ले, उसके खेत से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, एमएसपी नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती, उल्टा 3 काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी। युवाओं से बात करो, पहला सवाल मैं पूछता हूं, पढ़ाई क्या की? कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है और फिर पूछो, अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है? सबके सब कहते हैं नहीं, रोजगार नहीं मिल सकता। तेलंगाना में, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर से बात करो, कहते हैं, उनसे पूछो भैया करते क्या हो? तुमने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, करते क्या हो? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं, मगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाते। जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर भाषण में बोलते थे। आजकल नहीं बोलते, ना आपके चीफ मिनिस्टर, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को यह नहीं बताते कि हमने रोजगार का जो सिस्टम था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भाई और बहनों, देश को रोजगार देता कौन है? देश को रोजगार छोटा व्यापारी, किसान, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके
और कोविड के समय जो इनकी मदद नहीं की, इन 3 चीजों के कारण जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी बिजनेस खत्म हो गया है। ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 2-3 मित्र हैं, नाम आप जानते हो। क्या ये पूरा हिंदुस्तान जानता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनके जो मित्र हैं, मैं तो हैरान हो गया। आज सुबह मैंने रेवंत जी से पूछा, ये अभी तक हैदराबाद का एयरपोर्ट है, ये उनके हवाले कैसे नहीं हुआ? अब देखना, देख लेना, थोड़ी देर बाद ये उसको उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सड़कें, एयरपोर्ट, टेलीकॉम्स, LIC, ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजी है, ये सब की सब नरेंद्र मोदी अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा रहे हैं। और इधर इनका एक तरफ धरनी पोर्टल है, रात को देखते हैं भैया कहां किसकी जमीन गई, कितनी जमीन मिली मुझे, कहां कहां से केसीआर जी ने जमीन हड़पी, रात को वो देखते हैं। सुबह उठते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से पैसा हड़पने का काम करते हैं। और आप लोग एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी जी कहते थे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, 400 रुपए का हो गया है, याद है आपको? 400 रुपए का हो गया। अच्छा भाइयों बहनों, सिलेंडर कितने का है आजकल? अब प्रधानमंत्री जी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उस टाइम कहते थे पेट्रोल का दाम 65 रुपए हो गया है। आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम? एक शब्द नहीं बोलते। तो आप लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों के बीच में आप पिस जाते हो। कब जाते हो? और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को मिलता है। वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उनको एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, जमीन चाहिए, एक सेकंड में उनको मिल सकती है। मगर अगर एक छोटा व्यापारी अपना बिजनेस चलाना चाहे, अगर एक दुकानदार लोन लेना चाहे, नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता। ये लोग लाखों करोड़ रुपए का लोन ले सकते हैं। किसान लेता है, लोन लेता है, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, एकदम उसको कहते हैं डिफॉल्टर हो, जेल के अंदर कर देते हैं। डंडे मारते हैं, लाठी मारते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। मगर अगर अरबपति लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते, उसको कहते हैं ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं।
एक चुने हुए अरबपतियों का जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। जो भी सपना ये देखना चाहते हैं देख लेते हैं, पूरा कर देते हैं। और दूसरा, हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मिडिल क्लास का, छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का, उसमें आपको कोई सपना नहीं दिख सकता। और अगर आपने सपना देखा, पूरा होने का सवाल ही नहीं। यह है हिंदुस्तान। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ। आप देखिए, आज सुबह हम हैदराबाद में आए, 7 घंटे चले, लाखों लोग आए। आपने अपना पूरा प्यार, पूरी शक्ति यात्रा को दे दी। आमतौर से क्या होता है, व्यक्ति सुबह उठता है, थकान नहीं होती, 6-7 घंटे बाद चलने के बाद थकान लगती है। आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा शाम को जो हम कदम लेते हैं उसमें सुबह वाले कदम से कम थकान होती है। अजीब सी बात है, किसी भी यात्री को थकान नहीं हो रही है। तेरह 1400 किलोमीटर चलनी है, किसी को थकान नहीं हो रही। सुबह 6 बजे उठते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर चलते हैं। इसका कारण है भाई और बहनों, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप हमारे को अपनी शक्ति दे रहे हो, आप हमारे को अपना प्यार दे रहे हो, अपना भरोसा दे रहे हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हैदराबाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, हैदराबाद को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और याद दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर रहना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो हिंसा के साथ, नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, सवाल नहीं उठता। प्यार और भाईचारे के साथ ये प्रदेश और ये हैदराबाद आगे बढ़ेगा। ये आपका इतिहास है, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका कल्चर है, ये आपका डीएनए है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी, और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता,
भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश धूप, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यह आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है, तो यहां पे अब देखिए, सड़कों पे चले हैं, मगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। खारगे जी ने कहा
कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। इधर फोन उठाते हैं, वहां मोदी जी फोन उठाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। और फिर मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं, आज ये करना है, कल वो करना है। मैं अब महीनों से चल रहा हूं तेलंगाना में। कितने 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। किसानों से मिल रहा हूं, मजदूरों से बात हो रही है, युवाओं से बात हो रही है। 7-8 घंटे चलते हैं। 6 बजे शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा 7 बज जाते हैं। पूरा दिन हम तेलंगाना के लोगों की आवाज सुनते हैं। हम कुछ कहते नहीं, भाषण नहीं देते। कांग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते, दिन भर सुनते हैं। और 6-7 घंटे बाद हम 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं। किसानों से बात करो, सीधा किसान, तेलंगाना का किसान आपको कहता है, हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले, खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यह सच्चाई है। 24 घंटा काम कर ले, उसके खेत से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, एमएसपी नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती, उल्टा 3 काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी। युवाओं से बात करो, पहला सवाल मैं पूछता हूं, पढ़ाई क्या की? कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है। और फिर पूछो, अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है? सबके सब कहते हैं नहीं, रोजगार नहीं मिल सकता। तेलंगाना में, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर से बात करो, कहते हैं, उनसे पूछो भैया करते क्या हो?
तुमने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, करते क्या हो? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं, मगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाते। जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर भाषण में बोलते थे। आजकल नहीं बोलते, ना आपके चीफ मिनिस्टर, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को यह नहीं बताते कि हमने रोजगार का जो सिस्टम था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भाई और बहनों, देश को रोजगार देता कौन है? देश को रोजगार छोटा व्यापारी, किसान, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और कोविड के समय जो इनकी मदद नहीं की, इन 3 चीजों के कारण जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी बिजनेस खत्म हो गया है। ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 2-3 मित्र हैं, नाम आप जानते हो। क्या ये पूरा हिंदुस्तान जानता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनके जो मित्र हैं, मैं तो हैरान हो गया। आज सुबह मैंने रेवंत जी से पूछा, ये अभी तक हैदराबाद का एयरपोर्ट है, ये उनके हवाले कैसे नहीं हुआ? अब देखना, देख लेना, थोड़ी देर बाद ये उसको उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सड़कें, एयरपोर्ट, टेलीकॉम्स, LIC, ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजी है, ये सब की सब नरेंद्र मोदी अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा रहे हैं। और इधर इनका एक तरफ धरनी पोर्टल है, रात को देखते हैं भैया कहां किसकी जमीन गई, कितनी जमीन मिली मुझे, कहां कहां से केसीआर जी ने जमीन हड़पी, रात को वो देखते हैं। सुबह उठते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से पैसा हड़पने का काम करते हैं। और आप लोग एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी जी कहते थे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, 400 रुपए का हो गया है, याद है आपको? 400 रुपए का हो गया। अच्छा भाइयों बहनों, सिलेंडर कितने का है आजकल? अब प्रधानमंत्री जी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उस टाइम कहते थे पेट्रोल का दाम 65 रुपए हो गया है। आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम? एक शब्द नहीं बोलते।
तो आप लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों के बीच में आप पिस जाते हो, दब जाते हो और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को मिलता है। वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उनको एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, जमीन चाहिए, एक सेकंड में उनको मिल सकती है। मगर अगर एक छोटा व्यापारी अपना बिजनेस चलाना चाहे, अगर एक दुकानदार लोन लेना चाहे, नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता। ये लोग लाखों करोड़ रुपए का लोन ले सकते हैं। किसान लेता है, लोन लेता है, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, एकदम उसको कहते हैं डिफॉल्टर हो, जेल के अंदर कर देते हैं। डंडे मारते हैं, लाठी मारते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। मगर अगर अरबपति लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते, उसको कहते हैं ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक चुने हुए अरबपतियों का, जो भी करना चाहते कर सकते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, जो भी सपना ये देखना चाहते देख लेते हैं, पूरा कर देते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मिडिल क्लास का, छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का, उसमें आपको कोई सपना नहीं दिख सकता। और अगर आपने सपना देखा, पूरा होने का सवाल ही नहीं। यह है हिंदुस्तान। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ। आप देखिए, आज सुबह हम हैदराबाद में आए, 7 घंटे चले, लाखों लोग आए। आपने अपना पूरा प्यार, पूरी शक्ति यात्रा को दे दी। आमतौर से क्या होता है, व्यक्ति सुबह उठता है, थकान नहीं होती, 6-7 घंटे बाद चलने के बाद थकान लगती है। आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा शाम को जो हम कदम लेते हैं उसमें सुबह वाले कदम से कम थकान होती है। अजीब सी बात है, किसी भी यात्री को थकान नहीं हो रही है। 1300-1400 किलोमीटर चलनी है, किसी को थकान नहीं हो रही। सुबह 6 बजे उठते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर चलते हैं। इसका कारण है भाई और बहनों, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप हमारे को अपनी शक्ति दे रहे हो, आप हमारे को अपना प्यार दे रहे हो, अपना भरोसा दे रहे हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हैदराबाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, हैदराबाद को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
और याद दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर रहना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो हिंसा के साथ, नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सवाल नहीं उठता। प्यार और भाईचारे के साथ ये प्रदेश और ये हैदराबाद आगे बढ़ेगा। ये आपका इतिहास है, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका कल्चर है, ये आपका डीएनए है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी, तूफान, बारिश, धूप, कुछ कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है,
कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। ये आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है। पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है तो यहां पे अब देखिए सड़कों पे चले हैं, मगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। खारगे जी ने कहा कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। इधर फोन उठाते हैं, वहां मोदी जी फोन उठाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। और फिर मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं, आज ये करना है, कल वो करना है। मैं अब महीनों से चल रहा हूं तेलंगाना में। कितने 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। किसानों से मिल रहा हूं, मजदूरों से बात हो रही है, युवाओं से बात हो रही है। 7-8 घंटे चलते हैं। 6 बजे शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा 7 बज जाते हैं। पूरा दिन हम तेलंगाना के लोगों की आवाज सुनते हैं। हम कुछ कहते नहीं, भाषण नहीं देते। कांग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और 6-7 घंटे बाद हम 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं। किसानों से बात करो, सीधा किसान, तेलंगाना का किसान आपको कहता है, हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले,
खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यह सच्चाई है। 24 घंटा काम कर ले, उसके खेत से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, एमएसपी नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती, उल्टा 3 काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी। युवाओं से बात करो, पहला सवाल मैं पूछता हूं, पढ़ाई क्या की? कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है, और फिर पूछो अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है? सबके सब कहते हैं नहीं, रोजगार नहीं मिल सकता। तेलंगाना में, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर से बात करो, कहते हैं, उनसे पूछो भैया करते क्या हो? तुमने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, करते क्या हो? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं, मगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाते। जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर भाषण में बोलते थे। आजकल नहीं बोलते, ना आपके चीफ मिनिस्टर, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को यह नहीं बताते कि हमने रोजगार का जो सिस्टम था उसकी रीढ़ की